द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री मोदी जो देश में मीडिया के साथ कर चुके हैं, वही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी उन्होंने सिखा दिया। लेकिन ये भारत का बिकाऊ गोदी मीडिया नहीं था ना, कि जो मोदी जी से उनकी टॉनिक पर सवाल पूछेगा, आप थकते क्यों नहीं हैं, टॉनिक कौन सी लेते हैं। ये अमेरिका का मीडिया है जिसने मोदी जी पर आरोप लगाया और बाइडेन को लपेटे में भी ले लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, भारत के पीएम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे 3 दिवसीय दौरे पर, याद होगा आपको। वहां से वापस आ चुके हैं और गोदी मीडिया ने मोदी जी की थकान पर एक्सक्लूसिव शो चलाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अमेरिका में इस वक्त जो हो रहा है वो मोदी जी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस घमासान के बाद मोदी जी को अमेरिका में मीडिया ही अगली बार अमेरिका में घुसने नहीं देगा, जैसा उनका रवैया लग रहा है। दोस्तों, खबर अमेरिका से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप लग रहा है कि मोदी जी ने जो बाइडेन को अमेरिका की मीडिया से सवाल ना लेना सिखाया। यानी मोदी जी ने बाइडेन को कहा कि भाई मीडिया से सवाल लेने की जरूरत नहीं है। अमेरिका की प्रेस सेक्रेटरी से मीडिया ने सवाल पूछा कि आखिर क्यों बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठकर सवाल नहीं लिए, हमसे सवाल नहीं लिए, और आखिर क्यों हमें बुरा कहा। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या जो बाइडेन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सवाल ना लेने की सलाह दी थी, और अगर ऐसा नहीं है, अगर हम मान लें कि ऐसा नहीं है, तो फिर अचानक जो बाइडेन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इतने सालों में तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। प्रेस सेक्रेटरी ने पूरी तरह से प्रेस के इन सवालों से बचने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। आपको हम वीडियो दिखाते हैं, देखिए। As he sat down with Prime Minister Modi last week, the president said that the Indian press is better behaved than the US press, and then he advised him not to take questions. Can you explain why the American president was criticizing US reporters in that setting? Well, I would note first that he took questions on Friday, and he took questions again today. And I think what he said is that they're not always on point. Now, I know that isn't something that anyone wants to hear in here, but what I think he was conveying is, today he might want to talk about COVID vaccine. Some of the questions were about that. He might want to talk about, and some of the questions are not always about the topic he's talking about in that day. I don't think it was meant to be a hard cut at the members of the media, people he's taken questions from today and on Friday as well. Go ahead. It happened that he was sitting next to Prime Minister of India, one of the world's largest democracy, when he said that. It also followed the incident on Wednesday when he was sitting next to the Prime Minister of Great Britain. Is the president reticent to take questions when he's sitting next to a foreign leader in the Oval Office? Can we expect him to do that in the future? Steve, he took questions earlier that day on Friday. He'd already taken questions that day. I think that was the context of his comments. But obviously, again, the question And he's was, taken questions standing next to a foreign leader many, many times in the past, and will continue to. Go ahead, Jackie. Thanks, Jen. Going back to the Friday meeting with the Prime Minister, the President said that the Indian press was better behaved than the U.S. press, but the Indian press is ranked 142nd in the world, according to Reporters Without Borders, for press freedoms. I mean, how does he say that about the U.S. press compared to the Indian press? Well, I would just say to you that having now worked for the president, serving in this role for 9 months, having seen that he's taken questions from the press more than 140 times, including today and Friday, that he certainly respects the role of the press, the role of the freedom of free press. We ensure that we have press with us, of course, when we travel, that we have press with us for sprays in foreign capitals, and we will continue to. And I think that should speak to his commitment to freedom of press around the world. I want to go back to the जी, तो इस तरह से अमेरिकी मीडिया ने प्रेस सेक्रेटरी पर एक के बाद एक सवाल दागे। लेकिन एक बात जो आपने प्रेस सेक्रेटरी के जवाब में सुनी भी होगी, वो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने 9 महीने के कार्यकाल में लगभग 140 बार मीडिया के सवालों का जवाब दिया है, रिप्लाई दिया है। तो सवाल अब ये कि 9 महीने के कार्यकाल में हर मीडिया ब्रीफिंग में जब जो बाइडेन ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया, तो फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही ये इतिहास अचानक कैसे बदल गया, इसमें तब्दीली कैसे हो गई, जिसका सवाल भी अमेरिका की मीडिया ने पूछा दोस्तों, कि क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन को सवाल लेने से मना किया था।
दोस्तों मैं समझ नहीं पा रही हूं कि अभी तक भारत में तो मोदी जी मीडिया को कुचल ही रहे थे, अब उन्होंने दूसरे देशों में जाकर भी राष्ट्रपति को मीडिया को कुचलने की सलाह दे डाली, मीडिया को दबाने की सलाह दे रहे हैं, सवाल ना लेने की सलाह दे रहे हैं। जो बाइडेन ने तो 9 महीने में 140 बार मीडिया के सवालों का जवाब दिया, लेकिन आप बताइए कि भारत में मोदी जी ने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? 7 साल हो गए ना मोदी जी को, 7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई नहीं है भारत में। और अब अगर होगी भी तो बिकाऊ मीडिया उर्फ गोदी मीडिया मोदी जी की सहूलियत वाले सवाल पूछेगा, ताकि मीडिया के सवालों से मोदी जी की जो प्रभु वाली महिमा है ना, जो छवि है, उस पर एक खरोच या कहीं से कहीं तक आंच ना आने पाए। क्योंकि भारत में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को खत्म कर ही दिया है। अब विश्व गुरु बनने की लार इतनी ज्यादा मोदी जी के मुंह से टपक रही है कि मोदी जी के मुंह से अमेरिका के राष्ट्रपति को अपनी राह पर चलने की सलाह निकल रही है। सुना होगा दोस्तों हम सबने कि हर बच्चे को बचपन में बुरी संगत से बचना सिखाया जाता है, उसका परिवार उसको सिखाता है, क्योंकि बुरी संगत का नतीजा बहुत बुरा होता है। ये उसी बुरी संगत का नतीजा था जिस पर अमेरिकी मीडिया भड़क गया कि भाई अचानक से मोदी जी के सामने आते ही जो बाइडेन ने ऐसा क्यों किया। वजह है कि अमेरिका में गोदी मीडिया की तरह चाटुकार सिर्फ पैसा छापने के लिए नहीं बैठे, बल्कि सवाल पूछने के लिए बैठे, क्योंकि वही उनका काम है, पत्रकार का काम है, जो हमारी मेन स्ट्रीम उर्फ गोदी मीडिया को भी करना चाहिए। लेकिन सवाल करना वो भी मोदी जी से, ये तो हमारी गोदी मीडिया की डिक्शनरी में ही नहीं आता भाई। दोस्तों इस मामले पर कई नामचीन लोगों ने ट्वीट किया, उनके ट्वीट एक एक करके आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमने आपको वीडियो दिखाया, उस वीडियो को शेयर करने वाले एनडीटीवी के पत्रकार हैं उमा शंकर सिंह जी, जिन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भारतीय प्रेस को अमेरिकी प्रेस से बेहतर बता पूरे फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिकी पत्रकारों ने व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग में प्रेस सेक्रेटरी से एक के बाद एक कई सवाल दागे। ये भी पूछा कि भाई पीएम मोदी के बगल में बैठ उन्होंने सवाल क्यों नहीं लिए और क्यों हमें बुरा कहा। सफाई खुद सुनिए। उसके बाद इन्होंने वो वीडियो शेयर किया जो हम आपको दिखा चुके हैं। उमाशंकर साहब के इस ट्वीट पर कई लोगों ने रीट्वीट भी किया दोस्तों, जिनका रीट्वीट हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यूएस बेस्ड फ्रीलांस जर्नलिस्ट है जिन्होंने इंडिया टुडे के साथ भी काम किया हुआ है, मधु भाटिया झा, जो अपने ट्वीट में लिखती हैं कि यूएस मीडिया कहता है इंडियन प्रेस दुनिया में 142वें रैंक पर है प्रेस फ्रीडम के मापदंड के मामले में। फिर जो बाइडेन ने कैसे कहा कि भारतीय मीडिया बेटर बिहेव्ड है अमेरिकन मीडिया से। सटीक सवाल जिस शांति से पूछा गया, जवाब सही या गलत भी उतनी शांति से दिया गया। इमेजिन द सेम पीसी विद इंडियन मीडिया। तो मधु भाटिया झा ने यहाँ साफ तौर पर इंडियन मीडिया की खिल्ली उड़ाकर रख दी, फजीहत कर दी। मधु भाटिया झा के बाद पत्रकार अविनाश कल्ला ने कहा कि प्राइम टाइम और देशभक्ति से भरे रहने वाले योद्धाओं, जरा सुनो, 142वें रैंक वाले देश की मीडिया की तुलना हमारे से कैसे की। अमेरिकी पत्रकार का कटाक्ष। अविनाश कल्ला के बाद एनडीटीवी के पत्रकार कादम्बिनी शर्मा ने ट्वीट किया, जिनका ट्वीट दिखा रहे हैं। वो लिखती हैं कि यहाँ तो सवाल जवाब का झंझट ही नहीं है, अच्छा बुरा कौन पूछता है। कादम्बिनी शर्मा के बाद आपको रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह जी का ट्वीट दिखा रहे हैं। अपने इस ट्वीट में सूर्य प्रताप सिंह जी लिखते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने 9 महीने के कार्यकाल में 140 बार प्रेस के सवालों का उत्तर दिया, और 7 वर्षों में भारत में पीएम मोदी ने कितने बार आपको पता है। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को प्रेस से सवाल ना लेने की सलाह भी दे डाली। ये है अमेरिका व आज भारत में प्रेस की आजादी का अंतर। तो यहाँ पर सूर्य प्रताप सिंह जी ने भी पूरी तरह से लपेटे में लिया सरकार को, गोदी मीडिया को। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी ट्वीट के जरिए गोदी मीडिया को एक करारा तमाचा मारा। अपने ट्वीट में विनोद कापड़ी लिखते हैं कि जिस प्रेस सेक्रेटरी को अमेरिकी मीडिया लगातार घेर रहा है, उससे छोटे स्तर के भारतीय पीएमओ के अफसर के सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पर भारतीय मीडिया के संपादक, रिपोर्टर, एंकर सीधे दंडवत हो जाते हैं। ये हाल है भारत में प्रेस फ्रीडम का। तो इस तरह से अमेरिका से आए इस एक वीडियो ने दोस्तों गोदी मीडिया को उसकी औकात बता दी कि वो कितने पानी में है। असल में कह दिया कि भाई भारत का मीडिया तो
प्रेस की आजादी के मामले में पूरी दुनिया में 142वें नंबर पर आता है और वो किसके बदौलत हुआ है? वो तो गोदी मीडिया की बदौलत हुआ है। तो फिर जो बाइडेन ने अमेरिकी मीडिया की तुलना भारतीय मीडिया से कैसे कर दी? ये कटाक्ष चल रहा है इस वक्त अमेरिका में। मतलब अब आप खुद सोचिए कि मोदी जी और गोदी मीडिया अमेरिका से कितनी अखंड बेइज्जती करवा कर वापस आए हैं और इस वक्त भारत की भी बेइज्जती करवा रहे हैं। फिर भी छकड़ ऐसे रहे हैं जैसे अमेरिका ने मोदी जी को विश्व गुरु और गोदी मीडिया को विश्व की बेहतरीन मीडिया का खिताब दे दिया हो, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं है। अभी जो खबर हमने आपको दिखाई दोस्तों, इनकी असलियत यही है। अब जब मोदी जी को भारत की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इतना डर लगता है, यूट्यूब के पत्रकारों से इतना डर लगता है, तो अमेरिका की मेन स्ट्रीम मीडिया से तो डर लगेगा ही, जाहिर सी बात है। बात करेंगे भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया है ही नहीं, वो बिक चुका है, बिकाऊ मीडिया। इसलिए उनके बारे में बात करके क्यों ही अपना समय हम लोग जाया करें। इसलिए अमेरिका की मीडिया से सवाल लेने के लिए मोदी जी ने जो बाइडेन को नसीहत दे दी, क्योंकि अगर मोदी जी से अमेरिकी मीडिया ने सवाल पूछ लिया होता दोस्तों, तो गोदी मीडिया के विश्व गुरु की तगड़ी बेइज्जती हो जाती, यानी मोदी जी की तगड़ी बेइज्जती हो जाती, फजीहत हो जाती। किस मुंह से भारत वापस लौटते हमारे प्रधानमंत्री? बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।